What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 2nd of July and today is the first weekly expiry of this month on Sensex. And today the markets opened decisively above 24,000 levels on Nifty, and throughout the day the markets were bullish, and incidentally today we saw a 7% crush in VIX and India VIX जो है 12.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है, which is probably the lowest since this conflict started. In February the markets were at 26,000 levels, and when the markets started to fall and when the markets reached 24,000 levels, India VIX was at 22 levels, and today also the market is at 24,000 levels and India VIX is at 12. It means that market जिस कारण से जो गिरा था वो कारण almost खत्म हो चुका है, but our markets are still not able to head higher. But today's consolation is the IT index, which was beaten down. Today it moved up almost 4.5-5%. Lot of IT stocks kind of bounced back 5-6% up थे. Whether it's a dead cat bounce or whether this is the starting of some sort of a U-turn in the IT index, time has to tell. To talk about today's expiry was way calmer compared to the last 3-4 expiries, and आज का expiry जो था वो काफ़ी कम volatile होने वाला है, ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे. Straddle opened at somewhere around 350 and of course 300 पॉइंट का एक अप मूव आया and 300 पॉइंट का डाउन मूव आया, and फाइनल आवर में थोड़ा बहुत volatility थी, but it was nothing that one can't manage, and probably today's expiry was the easiest of the last 5 or 6 expiries in my opinion. And हमने कल के वीडियो में ये बात बार बार डिस्कस किए थे कि आज का एक्सपायरी है थोड़ा रिलेटिवली इजी रहेगा ऑप्शन सेलर्स के लिए, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी दैट. एंड पोस्ट 2 o'clock ऑफ कोर्स देयर वाज अ बिट ऑफ गामा, स्पेशली देयर वाज वन इंसिडेंट वेयर देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्रीक काइंड ऑफ अ कैंडल वेयर 30 रुपी का ऑप्शन मेड अ हाई ऑफ 80 rupees in a few seconds, and within the next few seconds the option cooled off too. But apart from that incident, it was a very calm and manageable expiry, especially post 3 o'clock. 3 o'clock के आसपास हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट एक हेवायर काइंड ऑफ अ मूव देता है, किसी भी डायरेक्शन में एक बड़ा वाला मूव दे देता है, ऑप्शन प्रीमियम्स 10-15 टाइम्स हो जाता है. बट आज के एक्सपायरी में पोस्ट 3 o'clock देयर वाज अ लीनियर काइंड ऑफ अ डीके, which kind of made the option sellers very happy, because जो 77,500 का straddle था, it was trading at almost 140-150 rupees at 3 o'clock and it closed exactly at zero, almost 150 points का एक linear crush without even having to delta hedge once after 3 o'clock. So it was a decent expiry. Let me know in the comments आज का expiry आपका कैसा रहा and if you got benefited by yesterday's analysis. So tomorrow is again a Friday and markets are heading above 24,000 levels. It looks like we might see some sort of a momentum on the upside. India VIX वही बोल रहा है, but let's see, let's plan for tomorrow. कल की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी छोटा सा 350 पॉइंट 400 पॉइंट के रेंज में जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इट इज़ टाइम दैट द मार्केट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस एंड लुक्स लाइक वी माइट बी ब्रेकिंग आउट इन द कमिंग वीक, बिकॉज इंडिया विक्स जो है 12.2 के आसपास चल रहा है. तो इंट्रो वीडियो में मैं एक चीज़ कह रहा था ना, जब मार्केट्स 26,000 से नीचे आ रहा था, 26,000 के आसपास फरवरी बजट के आसपास 26,300 के आसपास थे हम यहाँ पे. दिस वाज February 3rd, वेयर वी गॉट द ट्रेड डील एंड द मार्केट्स गैप्ड अप मैसिवली, एंड फ्रॉम देयर व्हेन द मार्केट्स केम टू 24,000 लेवल, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ पे विक्स 22 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आप जाके चेक कर सकते हैं चार्ट पे. एंड टुडे अगेन वी आर एट द सेम 24,000 लेवल एंड इंडिया विक्स 12 के आसपास है. सो इट मीन्स दैट इंडिया विक्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे 10 या 10.5 11 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा था, अभी 12 के आसपास चल रहा है. तो इट मीन्स दैट मार्केट्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द वर्स्ट इज ओवर, इंडियन मार्केट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मूव हायर. बट एज आई सेड, आईटी इंडेक्स थोड़ा राहत दे रही है, थोड़ा बाउंस दिखा रही है, बट वेदर इट्स एक्चुअली जेन्यून बाउंस और वेदर इट्स अ डेड कैट बाउंस, टाइम हैज़ टू टेल. बट कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि जो कल का जो फाइनल 2 hours का जो कंसोलिडेशन था, लेट मी गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, जो कल का 2 hour का जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेगा, 10 o'clock के पहले इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो हमने डिस्कस किए थे कि इट शुड बी टेक कंसिडर्ड एज सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट. तो ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ एन आवर में ही थोड़ा बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, एंड उसके बाद वापस मार्केट्स ने इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट करने को भी आया, एंड यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न बना के अगेन द मार्केट्स स्टार्टेड हेडिंग हायर. आप नोटिस कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस पुल बैक, द एंटायर डे द मार्केट वॉज मूविंग स्मूथली. आई मीन एक अच्छा सा एक अप ट्रेंड में जो जैसे मार्केट चलना चाहिए, एक स्लो ग्राइंडिंग होता है. अप ट्रेंड में मार्केट कभी ऐसा नहीं जाता, पैराबोलिक नहीं जाता. मार्केट अप ट्रेंड में धीरे धीरे ऐसे जाता है.
तो पुल बैक्स थोड़ा बहुत छोटे रहते हैं एंड मार्केट्स अपसाइड के डायरेक्शन में ग्राइंड करता है. तो टुडेज प्राइस एक्शन वाज प्रीटी मच सिमिलर टू दैट. एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करें तो सेंसेक्स का स्ट्रैडल pretty much लीनियर क्रश दिया है. कैन नोटिस दैट 350 के आसपास ओपन हुआ एंड देयर वाज नो स्पाइक व्हाटसोएवर. इवन लास्ट एक्सपायरी में आप देख सकते हैं, देखिए निफ्टी के स्ट्रैडल 110-120 के आसपास ओपन हुआ था एंड 140-145 तक स्पाइक किया था विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट द मार्केट्स केम डाउन एंड देन अगेन 100 से 120 के बीच में एक बार स्पाइक आया एंड देन 50 to 80 के बीच में एक स्पाइक आया. बट अगेन टुडे यू कैन नोटिस दैट देयर इज अ लीनियर काइंड ऑफ अ क्रश थ्रू आउट द डे एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम्स होल्ड कर रहे थे. मतलब आप देख सकते हैं कि 9:30 के आसपास मार्केट्स 300 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है एंड 3 o'clock के आसपास स्ट्रैडल का प्रीमियम जो है 150 है. मतलब पूरा 5.5 आवर्स में जो 150 पॉइंट जो क्रश हुआ है लास्ट आधा घंटे के लिए, दैट टू कंसिडरिंग एवरेजिंग पीरियड, मार्केट्स के पास 150 रुपीज का प्रीमियम बचा था विच काइंड ऑफ got crushed in a matter of minutes. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 77,500 का जो स्ट्रैडल था 150 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था, it got crushed to less than 50 in less than 2 minutes. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इधर उधर डिली डैली किया बट फाइनली 2 रुपीज़ के आसपास जो क्लोज है, मतलब 0 के बराबर ही क्लोज हुआ है. एंड आई हैड अ डिसेंट डे. काफ़ी दिनों के बाद मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन मेड. बट अगेन it all comes down to on which day you're sizing up and on which day you're sizing down, because when you're expecting some amount of volatility, like you have to size down because you're expecting spikes, and when you're expecting that आज का जो expiry है थोड़ा volatile ज़्यादा नहीं रहने वाला है, तो then you have to size higher. तो आज का ट्रेडिंग पे मेरा हमेशा मेरा 60% मार्जिन से ऊपर ही कंज्यूम हुआ है एंड जनरली जब मैं वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करता रहता हूँ तो तब मेरा मार्जिन 20% से ज़्यादा कंज्यूम होता ही नहीं. मतलब लेट्स से मैं 5 करोड़ के अकाउंट है, 6 करोड़ के अकाउंट, जो भी अकाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ तो उस अकाउंट में 1 करोड़ 1.2 करोड़ से ज़्यादा मेरा मार्जिन ब्लॉक ही नहीं होता है. काफ़ी मार्जिन फ्री रहता है ऑन द डेज व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग वॉलिटिलिटी. बट टुडे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मार्जिन जो है लाइक 60% से ऊपर ऑलमोस्ट कंज्यूम था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग फेयरली ईजियर एक्सपायरी. एंड मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि 2 o'clock के बाद थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी होगा. यहाँ पे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बार चॉप हुआ बिकॉज मार्केट्स में थोड़ा बहुत डेल्टा मूव आ रहा था. इट लुक लाइक द मार्केट वाज ब्रेकिंग आउट एंड फिर से वापस मीन रिवर्ट कर रहा था एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्रश हियर. बट फाइनली जब मार्केट इस मूव दिया तो देन आई ऑल्सो पोजिशन माई सेल्फ फॉर 77,500 का स्ट्रैडल एंड धीरे धीरे 77,500 का पुट्स ऐड करते करते आई काइंड ऑफ made the most of the money after 3 o'clock. So decent day and yes, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है मोस्ट प्रोबेबली कल या मंडे के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है वो टेक डाउन हो जानी चाहिए. तो लेट्स प्लान हाउ डू वी बी ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे, दैट इज टुमारो. तो यू कैन नोटिस दैट प्रीमियम्स आर एट एन ऑल टाइम लो. मतलब जो मार्च से जो फियास्को चला है उस फियास्को के पूरा पीरियड में दिस इज प्रॉब्ली द लोएस्ट थर्सडे क्लोज फॉर अ निफ्टी स्ट्रैडल 220 पे. सो कल आई डोंट नो बिकॉज एज आई ऑलवेज से फ्राइडे के दिन स्ट्रैडल कहाँ पे ओपन होता है कहाँ पे क्लोज होता है ये हम बोल नहीं सकते. यहाँ पे 2 सिनेरियो है. अगर मार्केट 24,000 के ऊपर बने रहता है, लेट्स से 24,000 के नीचे नहीं जाता है एंड 24,200 के ऊपर धीरे धीरे करके ग्राइंड करना शुरू करता है, तो देन प्रॉबेबली लाइक वी माइट सी 190 और इवन 180 का स्ट्रैडल क्लोज. ठीक है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड. बट लेट्स से गलती से अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 2400 के आसपास एंड एक बार 24,000 को टच करता है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मार्केट आ जाता है तो देन प्रॉबेबली द स्ट्रैडल विल नॉट लूज इट्स वैल्यू एंड प्रॉबेबली 220 रुपीज पे ही कल क्लोज खुलने वाला है. सो कल जो ओपन होगा प्रॉबेबली 210 पे ओपन होगा एंड बीच में 240 तक स्पाइक करेगा एंड फाइनल आवर्स में प्रॉबेबली वापस 220 पे आके हॉल्ट कर सकता है. सो इट ऑल डिपेंड्स वेदर द मार्केट tests 24,000 levels or the markets try to break out this level slow and steadily. ठीक है. Now यहाँ पे भी अपसाइड में भी थोड़ा बहुत रिस्क है. अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के सडनली फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स में एक बड़ा कैंडल फॉर्म करके यहाँ पे करता है तो देन देयर विल बी अ स्लाइटली स्पीयर ऑन द कॉल साइड. जो कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस बंद करने के लिए ट्राई करेंगे ना तो वहाँ से थोड़ा बहुत आईवी स्पाइक आ सकता है. बट अगर मार्केट को आईवी स्पाइक करना भी नहीं है एंड धीरे धीरे करके ऊपर जाना है तो देन द बेस्ट सिनेरियो इज आज का जो मोमेंटम है इसका मोमेंटम का एक फॉलो थ्रू गैप आना चाहिए. दैट इज समवेयर अराउंड एक 30 to 40 पॉइंट्स का एक गैप आना चाहिए समवेयर अराउंड 24,230 के आसपास एंड विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट धीरे धीरे करके इसको बहुत प्यार से अगर ब्रेकआउट देता है तो देन यहाँ पे
कॉल राइटर्स को टाइम भी मिलता है पोजीशंस को रोल करने के लिए, फ्यूचर्स को रोल करने के लिए, पुट्स को ऊपर उठाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे आईवी स्पाइक को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे लिए भी सेम चीज़ें ये होगा। तो बट अगर हमको ज़्यादातर पॉइंट्स अगर हमको कैप्चर करना है तो देन हमारे लिए जो मार्केट ओपन होना चाहिए दैट इज समवेयर अराउंड 24,150। इस 150 एंड 190 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है एंड इसको ब्रेकआउट करता है तो देन हमारे पास एक 1:2 काइंड ऑफ अ ट्रेड बन जाता है। बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 150 के आसपास बनेगा स्टॉप लॉस, एंड अगर हम लोग 200 के आसपास हम एंट्री करते हैं तो देन एटलीस्ट 280 तक हम लोग टारगेट होल्ड कर सकते हैं। तो इजीली लाइक अगर आप ऑप्शंस सेल करते हैं तो आपको 1:2 काइंड ऑफ टारगेट्स आपको मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन सेल करना है तो माय प्रिफर्ड ऑप्शन वुड बी टू सेल आईटीएम, 1 स्ट्राइक आईटीएम आपको सेल करना है। अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो प्रोबेबली डेबिट स्प्रेड वुड बी अ बेस्ट बेट। ठीक है, एंड आज के जो एक्सपायरी में हमने ये भी डिस्कस किए थे कि आज मार्केट इतना ज्यादा रेंज में मूव नहीं करने वाला है। दैट्स वाई लाइक अगर आपको डायरेक्शनल बेट्स लेना है तो नेकेड ऑप्शंस को शॉर्ट करो एंड डोंट डू रेशियोज। अगर हम रेशियोज करते तो आज प्रोबेबली द मनी वुडंट हैव बीन मेड बिकॉज मार्केट्स इतना ज्यादा मूव भी किया नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम जब मार्केट्स 24,000 के 200 के आसपास आया था वहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट्स फिर से एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। डेली रेंज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे 100-150 पॉइंट के अंदर पूरा दिन मार्केट्स रह रहा था। बट सडनली there was a fall where the market started again going down below 24,000 and बीच में फिर से वहाँ पे volatility पकड़ ली थी। बट अगर इस बार मार्केट अगर 24,200 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो देन अगेन एक्सपेक्ट द लोअर वॉलिटिलिटी डेज टू कम बैक एंड मार्केट थोड़ा बहुत कम वॉलेटाइल होने वाला है। मार्केट्स अगर ऊपर जाना है तो धीरे धीरे करके ग्राइंड करने वाला है। ठीक है, सो अगर मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से लाइक मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट्स फाइंड सपोर्ट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। यहाँ पे इस रीजन में अगर अराउंड 24,000 के आसपास मार्केट्स सपोर्ट फाइंड करेगा तो मेरा जो पोजीशंस बनना शुरू होगा वो यहाँ पे कल का जो कंसोलिडेशन हाई है ना इसी के आसपास मेरा पोजीशन बनना शुरू करेगा। बट यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस बनाना चाहता हूँ तो देन यहाँ पे मैं नेकेड ऑप्शन शॉर्ट नहीं कर सकता। बिकॉज अगर यहाँ पे मैं नेकेड ऑप्शन शॉर्ट करूंगा एंड मार्केट अगर 24,000 के आसपास आके सपोर्ट लेके वापस आएगा देन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मार्क टू मार्केट मेरा रेड रहेगा एंड उस रेड मार्क टू मार्केट को मुझे झेलना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर मैं डेबिट कॉल रेशियोज का पोजिशंस यहाँ पे बना लेता हूँ या कुछ नॉर्मल डेबिट स्प्रेड्स भी बना लेता हूँ, एक वर्टिकल डेबिट स्प्रेड बना लेता हूँ, देन मेरा जो होल्डिंग पावर है इसके आसपास काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ इस लो को ब्रीच करने तक मैं उस ट्रेड को आराम से होल्ड कर सकता हूं विदाउट मच ऑफ अ मार्क टू मार्केट स्विंग। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक बड़ा गैप अप होता है लेट्स से इस रीजन के ऊपर, अगर इस रीजन के ऊपर अगर गैप अप होता है, इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है तो देन मार्केट्स प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। एंड अगर ये जो मूव है इतना बड़ा गैप अप के साथ एक रेजिस्टेंस टेकआउट हो रहा है एंड अगर इसको बुल ट्रैप के लिए अगर लोग यूज करते हैं तो देन यू कैन एक्सपेक्ट वन एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल। सो इसके लिए हम लोग हमारा रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ऊपर होता है तो देन फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होने देना है एंड उसका लो ब्रीच होते ही हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है विद हाई ऑफ दैट फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस। बट फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड नहीं लेते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि 2 दिन में ऑलरेडी मार्केट्स काफी ज्यादा एक्सटेंड कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल आफ्टरनून से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23,800 से 24,200 तक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक मूव ऑलमोस्ट कर चुका है मार्केट एट एन IB of 12 which is already more than 1 standard deviation का मूव ऑलरेडी कर चुका है। सो दैट इज वाई यहाँ पे अगर 24,300 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है एंड फिर से उसके बाद हम एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। यस, ऊपर जा सकता है बट पुल बैक्स थोड़ा शार्प रहेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं बैठेगा। दैट इज वाई अगर इस रीजन के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो विल लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन, विल लुक फॉर द गैप अप फेड करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल लो ब्रीच होते ही हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर मोटा मोटी माई प्लान्स एंड या आई होप यू गाइस हैड अ डिसेंट एक्सपायरी डे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेलर्स के लिए थोड़ा राहत काइंड ऑफ एन एक्सपायरी मिली है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा। बाकी आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन। टिल देन टेक केयर।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.